اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 12th، السلام علیکم. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پراپرٹیز آف کولائڈس پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے اب تک 2 پراپرٹیز کمپلیٹ کی. ایک ہے براؤنین مومنٹ اور دوسرا ہے ٹنڈال ایفیکٹ، اور تیسری پراپرٹی جو ہے وہ اس وقت ہماری ڈسکشن میں ہے، دیٹ از الیکٹریکل پراپرٹیز. تو الیکٹریکل پراپرٹیز میں اب تک ہم نے 2 باتیں پڑھ لی ہیں. ایک ہے اسٹیبلٹی آف دا کولائڈس، اور نمبر 2 الیکٹروفورسز یا کیٹافورسز. تو آج جو تیسری بات ہمیں پڑھنی ہے وہ بھی الیکٹریکل پراپرٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، دیٹ از الیکٹرو آسماسس. یہ بہت ہی آسان انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب سے پہلے بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آسماسس کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ آسماسس جو ہے اٹ از دا فینامنا آف مومنٹ آف سالونٹ پارٹیکلز تھرو سیمی پرمیبل میمبرین. جس طرح آپ نے سولوشن میں پڑھا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم ایک کنٹینر لے رہے ہیں. اس کنٹینر کو ہم 2 کمپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں بائی مینز آف اے سیمی پرمیبل میمبرین. اگر ہم ایک کمپارٹمنٹ میں پیور سالونٹ لیں گے اور دوسرے کمپارٹمنٹ میں اگر ہم سولوشن لیں گے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر خود بخود مالیکیولز سالونٹ سے سولوشن میں داخل ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ پیور سالونٹ تو سالونٹ مالیکیولز ہی آئیں گے. تو اس طرح سے یہاں پر اس سائڈ پہ لیول ڈیکریز ہوتی ہے اور اس سائڈ پہ لیول انکریز ہو رہی ہے. یہ جو مومنٹ آف سالونٹ مالیکیولز تھرو سیمی پرمیبل میمبرین ہے، اسی چیز کو ہم آسماسس کہتے ہیں. تو یہ آسماسس جو ہے اٹ ٹیکس پلیس بٹوین اے ڈائلیوٹ سولوشن اینڈ اے اسٹرانگ سولوشن ایز ویل. یعنی اگر ہم 2 سولوشن لیں گے تو پھر ڈائلیوٹ سولوشن میں سے سالونٹ مالیکیولز موو کرتے ہیں انٹو کنسنٹریٹڈ سولوشن. تو یہ فینامنا جو ہے اس کو آسماسس کہتے ہیں. تو جو بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آسماسس میں مومنٹ آف سالونٹ مالیکیولز ہوتی ہے. مومنٹ آف سالونٹ مالیکیولز تھرو سیمی پرمیبل میمبرین. تھرو سیمی permeable membrane from pure solvent to solution or from dilute solution to concentrated solution. تو اب بات آتی ہے کولائڈس کی. کولائڈس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کولائڈس جو ہے اس میں کولائڈل پارٹیکلز کا سائز جو ہوتا ہے دیٹ از لارجر انف. کولائڈل پارٹیکلز جو ہیں، کولائڈل پارٹیکلز دیٹ مینس پارٹیکلز آف دا ڈسپرسڈ فیز، وہ لارجر انف ہیں، بہت بڑے پارٹیکل ہیں. لارجر انف، اب آپ کو یاد ہوگا جو گرہم تھے، گرہم نے سٹارٹ پہ اسی بنیاد پہ تو پارٹیکلز کو یا سولوشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، کرسٹلائڈس اینڈ کولائڈس. تو اس نے وہاں پر بتایا تھا کہ کولائڈس جو ہوتے ہیں وہاں پر پارٹیکلز سیمی پرمیبل میمبرین کے تھرو پاس نہیں ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کولائڈل پارٹیکلز جو ہیں یہ لارجر سائز کے ہیں، اس لیے یہ سیمی پرمیبل میمبرین کے تھرو پاس ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اب اگر ہمیں کولائڈل پارٹیکلز کی آسماسس کرنی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی آسماسس میں سالونٹ مالیکیولز یعنی ڈسپرشن میڈیم پارٹیکلز ہی موو کریں گے. تو جس وقت یہ آسماسس کیری کی جاتی ہے انڈر دا انفلوئنس آف الیکٹرک فیلڈ، انڈر دا انفلوئنس آف الیکٹرک فیلڈ، اسی کو نام دیا جاتا ہے الیکٹرو آسماسس. سو واٹس الیکٹرو آسماسس؟ the phenomena of osmosis. اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں the phenomena of osmosis. What is osmosis? Moving of dispersion medium particles. چونکہ سولوشن میں ہم سالوٹ اور سالونٹ یوز کرتے ہیں، کولائڈس میں ڈسپرسڈ فیز اور ڈسپرشن میڈیم. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ موونگ آف ڈسپرشن
medium particles. The phenomenon of osmosis, that is moving of dispersion medium particles through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane under the influence of electric field. Under the influence of electric field, इसी को हम कहते हैं electroosmosis. The process called as electroosmosis. तो आप देख लीजिए ये electroosmosis phenomenon जो है ये कैसे कैरी किया जाता है। तो इसके लिए जो हम apparatus यहाँ पर यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए किस तरह के हम apparatus यूज करते हैं। इस तरह से हम एक ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब में यहाँ पर हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए हम इस ट्यूब को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और एक जो कंपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं बिकॉज थ्रू इन कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाला कंपार्टमेंट है इसमें हम ले रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल जिसको हम कहते हैं। कोलाइडल सॉल हम इसमें लेते हैं बीच वाले में। तो जाहिर सी बात है ये जो कोलाइडल सॉल होगा इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स लार्जर साइज होते हैं, डिस्पर्शन मीडियम तो सॉल्वेंट ही होता है। तो ये जो बाहर वाले 2 कंपार्टमेंट रहते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं, हम कॉर्क फिट करते हैं। कॉर्क के जरिए इसमें हम एक डिलीवरी ट्यूब फिट करते हैं। इस तरह से ये कॉर्क लगाते हैं हम। कॉर्क में हम एक तो डिलीवरी ट्यूब फिट करते हैं और दूसरा हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। इस तरह से सपोज ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसी तरह से दूसरी जानिब भी हम डिलीवरी ट्यूब फिट करेंगे इस तरह से, और इसमें हम कॉर्क लगाएंगे। उस कॉर्क में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा इलेक्ट्रोड, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था तो यहाँ से हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। अब देख लीजिए अब आपके 3 कंपार्टमेंट्स बन गए इस ट्यूब के। ये जो बाहर वाले 2 कंपार्टमेंट हैं इनमें हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट इन 2 कंपार्टमेंट्स में। तो सॉल्वेंट की लेवल जो है वो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डिलीवरी ट्यूब में। अब ये जो कोलाइडल सॉल है इसको हमने बीच वाले कंपार्टमेंट में लिया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सबब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी। अब देख लीजिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे आपने पहले ही पढ़ा कि ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल जो होता है, कोलाइडल सॉल, इसमें डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स जो हैं, जैसे कल आपने देख लिया, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे भी चार्ज होती है, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। और जो डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स पे भी चार्ज होती है। और वो जो चार्ज जो होती है दैट इज अपोजिट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। यानी अगर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होगी, जाहिर सी बात है। तो इस बीच वाले कंपार्टमेंट में हमारा जो कोलाइडल सॉल है इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पे, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे एक तरह की चार्ज है और जो डिस्पर्शन मीडियम है उस पे दूसरी तरह की चार्ज है। अब कॉमन सेंस है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, मान लो कि हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम है
उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम आर्सेनिक सल्फाइड में देखते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होती है, और सॉल्वेंट जो होता है डिस्पर्शन मीडियम उस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होंगे, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव करेंगे इस साइड पे। तो जो ही ये मूव करेंगे, चूंकि वो छोटे पार्टिकल्स हैं, दे कैन ईजिली पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इस कंपार्टमेंट में चला जाएंगे वो, तो जिसकी वजह से यहाँ जो डिलीवरी ट्यूब है इसमें लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो रेज हो जाएगी, और यहाँ पर लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, अगर वो इस साइड मूव भी कर लेंगे बिकॉज ऑफ द चार्ज अपोजिट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, एनोड है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल जो हैं वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इनका साइज बड़ा है, दे आर लार्जर इन साइज, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकेंगे, इसलिए वो यहीं बीच वाले कंपार्टमेंट में ही रहेंगे। सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स ही मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरह से जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्योंकि ये ऑस्मोसिस जो है इट टुक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये फिनोमेना जो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पुट बाय साइंटिस्ट, उसका नाम था रिस, REUSS रिस। इसने इसको 1809 में पुट फोर्थ किया। और दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था पॉरेट, PORRET, पॉरेट। इसने यही फिनोमेना इन द ईयर 1816 दे दिया। ठीक है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बाद इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में चौथी चीज जो हमें, पहला था स्टेबिलिटी, दूसरा था इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब तीसरा हो गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, और चौथी चीज the fourth one which we are going to study, that is coagulation। और इसका दूसरा नाम है फ्लूक्यूलेशन, फ्लूक्यूलेशन, या इसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन ये भी बहुत ही आसान है अंडरस्टैंड करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोगुलेशन, फ्लूक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन, ये जो कोगुलेशन या फ्लूक्यूलेशन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स so as to change them into large sized particles which ultimately settle down as a precipitate. This property is called coagulation. So what is coagulation? It is a process of aggregating together of colloidal particles, so as to change them into large sized particles, large sized particles, so as to change, which ultimately settle as a precipitate, is called as coagulation or flocculation. फिर से देख लीजिए, it's a process of aggregating together of colloidal particles
so as to change them into large sized particles which ultimately settle as a precipitate. मैं आसान तरीके से इस बात को समझाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी तरफ। सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में कोलाइडल सॉल है। तो आपने देख लिया कोलाइडल सॉल जो होता है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं इन ए डिस्पर्शन मीडियम, और ये कोलाइडल सॉल जो होते हैं स्टेबल होता है, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम बाय इटसेल्फ। क्यों स्टेबल होते हैं? ये आपने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा, क्योंकि इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होती है, इधर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो चूंकि सभी पार्टिकल्स पे एक जैसी चार्ज है, तो ये चार्ज एक जैसी चार्ज होने के सबब कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। जब ये रिपेल कर रहे हैं दैट मीन्स दे वोंट कम क्लोज टुगेदर। तो क्लोज जब ये नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है ये दे रिमेन डिस्पर्स्ड। तो इस तरह से ये कोलाइड स्टेबल बनता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये कोलाइडल पार्टिकल जो इस वक्त अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, हम चाहेंगे कि ये एग्रीगेट हो जाए, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, एक दूसरे के पास आ जाएं, जमा एक ही जगह पे हो जाएं, दूर दूर ना रहें। तो इससे क्या होगा, इनका साइज बढ़ जाएगा, इनका मास बढ़ जाएगा, फिर ये पार्टिकल इस डिस्पर्शन मीडियम में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ लार्जर साइज एंड लार्जर मास दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। अगर ऐसा हो गया, ये पार्टिकल सारे के सारे जमा होके एट द बॉटम सेटल हो गए, तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने प्रेसिपिटेट बना दिया। तो फॉर ये जो कोगुलेशन या फ्लूकुलेशन है, ये तो यही प्रोसेस है कि इसमें ये पार्टिकल्स एग्रीगेट होके सेटल होती हैं एट द बॉटम। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये कोलाइड जो है स्टेबल है, पार्टिकल्स पे एक जैसी चार्ज है, ड्यू टू लाइक चार्ज वो सेटल नहीं होते हैं। अब ये कैसे सेटल होंगे? सेटल करने के लिए, इन्हें प्रेसिपिटेट करने के लिए या इन्हें कोगुलेट करने के लिए हमें इनकी ये चार्ज ख़त्म करनी होगी। इन पे जो चार्ज है, चाहे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को हमें ख़त्म करना होगा। ये चार्ज ख़त्म करने के लिए हम इस कोलाइडल सॉल में बाहर से एक साल्ट आयनिक कंपाउंड ऐड कर रहे हैं। उस कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, इसकी चार्ज को ख़त्म करने के लिए, ताकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाए, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, बात समझ लीजिए। इन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये आयनिक कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर सिंपल से मैं बता दूं, हम सोडियम क्लोराइड जो है इसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट ये क्यों है? क्योंकि जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन जब हम लेंगे, that solution will have two types of ions, sodium ion and chloride ion. अब अगर हम यही सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन, सपोज हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है आर्सेनिक सल्फाइड का, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का, उसमें आपने देख लिया, पढ़ लिया कि वहाँ पर उस आर्सेनिक सल्फाइड पे कोलाइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होती है, और जब हम आर्सेनिक सल्फाइड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होती है, इस तरह से नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स इस पे होते हैं। जब हम इसी सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे सोल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में दोनों तरह के आयन हैं, सोडियम आयन भी, क्लोराइड आयन भी, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से जो हमने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, उसमें से सोडियम आयन जो हैं वो इस नेगेटिव आयन पे जमा हो जाते हैं। इस तरह से ये पॉजिटिव आयन सोडियम के इस कोलाइडल पार्टिकल की नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल अब न्यूट्रल बन गया। इस तरह से दूसरा पार्टिकल भी न्यूट्रल बनेगा, तीसरा भी न्यूट्रल बनेगा, चौथा भी न्यूट्रल बनेगा। जब तक इन पे चार्ज थी तब तक ये रिपेल कर रहे थे। अब चूंकि इनकी चार्ज खत्म हो गई, अब ये रिपेल नहीं करेंगे। नाउ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल कम क्लोज टुगेदर। तो साइज इनका बढ़ेगा,
and they will settle at the bottom. تو precipitate کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان colloidal particles کی چارج ختم کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں باہر سے کوئی سالٹ ایڈ کرنا پڑے گا. اس سالٹ کو ہم جنرلی الیکٹرولائٹ کہتے ہیں یا کوگولیٹنگ ایجنٹ کہتے ہیں یا فلوکیلیشن ایجنٹ کہتے ہیں. وہ کوگولیٹنگ ایجنٹ یا فلوکیلیٹنگ ایجنٹ میں نے بتا دیا، اس کے لیے ہم عام طور پہ ٹرم الیکٹرولائٹ استعمال کرتے ہیں. یہ الیکٹرولائٹ colloidal particles کی چارج کو ختم کر کے انہیں نیوٹرلائز کرتا ہے اور انہیں سیٹل ہونے پہ مجبور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے کوگولیشن پروسیس ہوتی ہے. جو الیکٹرولائٹ آپ استعمال کریں گے کوگولیشن کرنے کے لیے، اس کو ہم سمپلی کوگولیٹنگ ایون یا کوگولیٹنگ ایجنٹ کہہ سکتے ہیں یا فلوکیلیشن ایجنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جنرلی کیا ہوتا ہے، اگر ہم تھوڑی تعداد میں لیسر کوانٹیٹی، اگر ہم لیسر کوانٹیٹی میں الیکٹرولائٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہم پروسیس کو جنرلی فلوکیلیشن کہتے ہیں. فلوکیلیشن FLOCCU فلوکیلیشن کہتے ہیں. اب اگر تھوڑا زیادہ کوانٹیٹی میں، ہائر کوانٹیٹی میں استعمال کرتے ہیں تو الیکٹرولائٹ کو، تو اس وقت ہم پروسیس کو کوگولیشن کہتے ہیں. خیر یہ دونوں پروسیس ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس وقت ہم کوگولیشن کہتے ہیں. اب چونکہ یہ جو فلوکیلیشن یا کوگولیشن ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں الیکٹرولائٹ استعمال کرنا پڑتا ہے. چونکہ ہم ڈفرینٹ الیکٹرولائٹس استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر سوڈیم کلورائڈ کیا، ہم میگنیشیم کلورائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم المونیم کلورائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے ڈفرینٹ الیکٹرولائٹس ہم استعمال کر سکتے ہیں. جب ہم ڈفرینٹ الیکٹرولائٹس استعمال کریں گے تو ڈفرینٹ الیکٹرولائٹس کی ہمیں ڈفرینٹ کوانٹیٹیز استعمال کرنی پڑیں گی. ہمیں ہر ایک الیکٹرولائٹ کا ایک جیسی اماؤنٹ کوگولیشن کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنی پڑتی ہے. ڈفرینٹ الیکٹرولائٹس کی ڈفرینٹ کوانٹیٹیز استعمال کرنی پڑتی، کسی کا کم اور کسی کا زیادہ. کس کا کتنا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا اس کو ہم اس الیکٹرولائٹ کا فلوکیشن پاور یا کوگولیٹنگ پاور یا کوگولیٹنگ ویلیو کہتے ہیں. زیادہ بیٹر ہے فلوکیلیٹنگ پاور اور کوگولیٹنگ پاور یا کوگولیٹنگ ویلیو کہیے. پہلے فلوکیلیٹنگ ویلیو یا کوگولیٹنگ ویلیو، اس کا مطلب یہ ہوا، فلوکیلیٹنگ ویلیو یا کوگولیٹنگ ویلیو کا مطلب ہوا اماؤنٹ آف دا کوگولنٹ یا فلوکیلنٹ یوزڈ. ہم کتنا کوگولنٹ استعمال کریں گے کمپلیٹ پریسپیٹیشن کے لیے، فار کمپلیٹ پریسپیٹیشن. اس کو ہم کہتے ہیں کوگولیٹنگ ویلیو یا فلوکیلیٹنگ ویلیو. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہر ایک کوگولیٹنگ ایجنٹ کا ہمیں برابر تعداد استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے، کسی کا کم اور کسی کا زیادہ. تو جس کا ہمیں کم کوانٹیٹی، جس کوگولیٹنگ ایجنٹ کی کم کوانٹیٹی استعمال کرنی پڑے گی، اس کا مطلب ہے اس کا کوگولیشن پاور جو ہے وہ زیادہ ہے. تو کوگولیٹنگ پاور جو ہے یہ ہے پاور آف کوگولیشن. کس میں کتنی شکت ہے، کس میں کتنی شکتی ہے کوگولیشن کرنے کی. جس میں زیادہ شکتی ہوگی، زیادہ طاقت ہوگا، زیادہ پاور ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کی ہمیں کم کوانٹیٹی استعمال کرنی پڑے گی. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کوگولیٹنگ پاور ہے، اٹ از ریسیپروکل آف کوگولیٹنگ ویلیو. ریسیپروکل آف کوگولیٹنگ ویلیو. پھر سے سنیے، کوگولیٹنگ ویلیو جو ہے اٹ از دا اماؤنٹ آف دا کوگولیٹنگ ایجنٹ یوزڈ فار کوگولیشن. اماؤنٹ، کتنی تعداد آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. اب کوگولیٹنگ پاور دوسری ٹرم ہے، یعنی کوگولیٹنگ پاور جو ہے اٹ از دا پاور آف دا کوگولیٹنگ ایجنٹ ٹو پریسپیٹیٹ دا کولوئڈل سال. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہمیں کوگولیٹنگ پاور زیادہ ہے کسی کوگولیٹنگ ایجنٹ کا تو اس کی کم کوانٹیٹی استعمال کرنی پڑے گی. جب کوانٹیٹی کم استعمال کرنی پڑے گی تو کوگولیٹنگ ویلیو کم ہو گیا. یعنی جس کوگولیٹنگ ایجنٹ کا کوگولیٹنگ ویلیو کم ہوتا ہے اس کا کوگولیٹنگ پاور جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی
किसी कोगुलेटिंग एजेंट का कोगुलेटिंग पावर कितना है या कोगुलेटिंग वैल्यू कितना है, इट हैज़ बीन पुट फोर्थ बाय हार्डी एंड शूल्स अंडर द नेम हार्डी शूल्स लॉ। हार्डी शूल्स लॉ, हार्डी शूल्स लॉ जो है ये हमें यही चीज बता रहा है कि हमें कितनी क्वांटिटी किसी कोगुलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हार्डी शूल्स रूल जो है या हार्डी शूल्स लॉ जो है ये हमें बता रहा है कि जो कोगुलेटिंग वैल्यू या कोगुलेटिंग पावर जो है इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। यानी कोगुलेटिंग पावर जो है किसी अयान का ये दो चीजों पे मुनहसर करता है, डिपेंड करता है। नंबर एक, द चार्ज ऑन द कोगुलेटिंग अयान, ऑन द कोगुलेटिंग अयान should be or is opposite of the charge, ये कॉमन सेंस है, opposite of the charge on the colloidal particle। यानी कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज है उस चार्ज का अपोजिट चार्ज होता है ऑन द कोगुलेटिंग अयान। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया आर्सेनिक सल्फाइड सॉल जो है ये नेगेटिवली चार्जड है, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब हमें इस कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट करना है तो हमने यहां से सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दिया, तो इस सोडियम क्लोराइड में से सोडियम अयान जो है इसने इस आर्सेनिक सल्फाइड पार्टिकल को न्यूट्रलाइज किया, इसलिए सोडियम अयान जो है दिस इज द कोगुलेटिंग अयान। अब इस सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज है, कोगुलेटिंग अयान पे पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं वहां पर मैग्नीशियम अयान जो है वो कोगुलेटिंग अयान है, वो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इसी तरह से आप अल्युमिनियम क्लोराइड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अल्युमिनियम पॉजिटिव अयान यहाँ पर प्रेसिपिटेशन करेगा, तो वो कोगुलेटिंग अयान हुआ, ठीक है ना। तो दूसरी बात कि अब जो कोगुलेटिंग वैल्यू जो है या कोगुलेटिंग पावर जो है इट डिपेंड्स, ये भी कॉमन सेंस है, डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी, डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ द अयान, या आप कह सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अयान। ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी जो है दैट इज द चार्ज। सपोज सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं, यहाँ सोडियम क्लोराइड पे चार्ज +1 है और क्लोरीन पे -1, तो वैलेंसी सोडियम की +1 है। अब अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है, अल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे तो अल्युमिनियम पे चार्ज +3। अब कॉमन सेंस है सोडियम अयान जहां पर हमें एक अल्युमिनियम अयान की जरूरत पड़ेगी वहां पर हमें 3 सोडियम अयान जरूरत पड़ेंगी, क्योंकि एक अल्युमिनियम पे +3 चार्ज है तो एक सोडियम पे +1 ही है। तो जो काम एक सोडियम अयान करेगा, एक अल्युमिनियम अयान करेगा, वहां पर हमें 3 सोडियम अयान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जितनी ज्यादा चार्ज है या जितनी ज्यादा वैलेंसी है उतना ही कम वैल्यू होगा कोगुलेटिंग वैल्यू का। कोगुलेटिंग वैल्यू उतना ही कम होगा, उतनी ही कम क्वांटिटी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी। या हम ये कह सकते हैं जितनी वैलेंसी ज़्यादा है उतना ही कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। तो यही दो बातें जो हैं इन्हीं को हम हार्डी शूल्स लॉ कहते हैं। तो आपने देख लिया हार्डी शूल्स लॉ जो है ये हमें बता रहा है कि जो कोगुलेटिंग अयान है इसमें दो चीजें होनी चाहिए। नंबर एक, इस पे चार्ज होनी चाहिए अपोजिट टू दैट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल सो दैट इट कैन न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। नंबर टू, द कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर of the coagulating ion depends upon the valency of the coagulating ion। अगर वैलेंसी ज्यादा है कोगुलेटिंग वैल्यू फिर कम है या कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। तो इस तरह से कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर जो है जैसे मैंने पहले भी बता दिया दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इस तरह से आप आसानी के साथ डिफरेंट आयन्स का कोगुलेटिंग वैल्यू या कोगुलेटिंग पावर
कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है। जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसका कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, उसका कोगुलेटिंग वैल्यू कम है, ठीक है ना। और जिस पे चार्ज कम होगी उस पे कोगुलेटिंग पावर कम होगा और कोगुलेटिंग वैल्यू उसका ज़्यादा होगा, हमें वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो कोगुलेटिंग आयन्स हैं ये पॉजिटिवली भी हो सकते हैं और नेगेटिवली भी हो सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर हम मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको डिफरेंट आयन्स दे रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन, कैल्शियम +2 आयन, अल्मोनियम +3 आयन, इन्हें आपको अरेंज करना होगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोगुलेटिंग वैल्यू। इंक्रीजिंग ऑर्डर कोगुलेटिंग वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कोगुलेटिंग वैल्यू अल्मोनियम का ज़्यादा होगा, अल्मोनियम +3, इसका कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो कम है। फिर कैल्शियम का इससे ज़्यादा होगा, सोडियम का उससे ज़्यादा होगा। ये कोगुलेटिंग वैल्यू की मैं बात करता हूँ, कोगुलेटिंग वैल्यू। उसके बाद अगर कोगुलेटिंग पावर के हिसाब से इन्हें अरेंज करना होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले आएगा फिर सोडियम आयन, इसका कोगुलेटिंग पावर कम है, देन कैल्शियम आयन, देन अल्मोनियम +3 आयन। तो ये कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर हो गया। तो आप देख रहे हैं कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर जो है दे आर अपोजिट ईच अदर। इसी तरह से आप नेगेटिव आयन में भी कर सकते हैं, क्लोराइड नेगेटिव आयन, इसी तरह से आपके पास सल्फेट -2 आयन, या FeCN6 -3 आयन। तो जाहिर सी बात है कोगुलेटिंग वैल्यू जो होगा दैट विल बी इन दिस ऑर्डर, ये इसका कम क्वांटिटी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर कोगुलेटिंग पावर देखना होगा, कोगुलेटिंग पावर जो है वो इसका ज़्यादा है, इसका कम है और इसका उससे भी कम है, ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी जो है कोगुलेशन की प्रॉपर्टी, या फ्लुक्युलेशन हम जिसे कहते हैं, या प्रेसिपिटेशन जिसे कहते हैं, आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे फिर नया टॉपिक। ये जो कोगुलेशन है, तो हमने बता दिया कोगुलेशन करने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं कोगुलेशन या फ्लुक्युलेशन के लिए। तो अगर हो सका तो इंशाल्लाह उसके बारे में कल मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा, और फिर हम अपनी नए टॉपिक पे आ जाएंगे। हमारा नया टॉपिक जो इसमें होगा, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, दैट इज़ प्रोटेक्टेड नंबर या गोल्डन नंबर। हालांकि वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड टुमारो। थैंक यू वेरी मच।